Assalamu alaikum. Walaikum Assalamu assalam. alaikum. Waalaikum Thank you for Walaikum assalam. joining us for today. Welcome to the POC family. Actually POC अभी फॉर्म हुआ कोविड में. आपको पता है कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजें आई हैं और बहुत सारी चीजें खत्म भी हुई हैं. और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी इस कोविड में ही बना, लोगों के मसाइल देखते हुए. ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है. प्लीज आप लोग इसको सब ज्वाइन कीजिए और आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए है. आप ज्वाइन करेंगे और हम आप सबकी आवाज है एक्चुअली पीओसी पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी. और आज हम सेलिब्रेट करें, हमारा फर्स्ट इवेंट है. आज हम जिस डे को सेलिब्रेट करें वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे है, जो कि पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है. मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिससे हर इंसान अपनी सलाहियतों को पहचान सकता है. अगर आप अपने अच्छे जहन में आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी है और आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता चलता है, उसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल हमारे पास स्पीकर्स हैं. रिदा है, सफ़ा जावेद हैं, सदफ हैं और हमारे साथ इस वक्त अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, और हमारे साथ मरियम महमूद है डॉक्टर, जो हमें बताएंगी. सबसे पहले मरियम से शुरू करेंगे. मरियम हमें बताएंगी कोविड के बारे में, ये क्या है, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के पास प्रोग्राम इवेंट फ्लो है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं. जी मरियम. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Waalaikum assalam. Walaikum assalam. My name is Maryam Mahmood. I'm a doctor by profession and I recently completed my house job in Bahrain. Currently, मैं काम कर रही social media पे with a group of my fellow doctors to spread awareness about mental health and other diseases on social media. And I think it's a starter for me to start with this webinar. So anyways, we're going to talk about the main highlight of our lives today. Something जो हमारी life का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, which is coronavirus. So just हम start करेंगे to know what exactly is coronavirus before getting into the psychological part of that. So basically COVID-19 is an infectious disease जो coronavirus cause करता है. And it comes from a group of RNA viruses. और ये viruses जो होते हैं हमारे respiratory tract को infect करते हैं. And इसी group में से we get influenza. So that's why the symptoms we get through of corona are the same as we get from influenza. उसके बाद ये है कि ये जो COVID है, it actually affects different people in different ways. So ऐसा नहीं कि some people might not get any symptoms, या कुछ लोगों को बहुत ही सीरियस सिम्टम्स आ जाते हैं. एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 डेज के अंदर ही सिम्टम्स शो हो सकते हैं, कम से कम 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज. दैट्स व्हाई वी क्वारंटीन फॉर 14 डेज कि इन केस इन दिनों में आपको सिम्टम्स शो हो सकते हैं. Basically, most of the people who get this virus, they have very mild to moderate symptoms. And most of them, let's say more than 80% of the people, they don't even need any medical treatment. Because उनके symptoms बहुत ज़्यादा mild होते हैं. और सबसे ज़्यादा common symptoms we get is fever. 99% of the people को अब fever आता है. And like let's say dry cough or shortness of breath or tiredness, same symptoms जो हमें normal common flu से मिलते हैं. The symptoms are 90% the same. Other symptoms may include joint pains or nasal congestion, headaches, diarrhea, loss of smell or taste, or sore throat. Now, the main thing is the loss of smell is very corona-specific symptom, but it's just not the only and the first symptom you get in corona. कुछ लोगों को सिर्फ फीवर होगा, कुछ लोगों को सिर्फ ड्राई कफ होती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं in my hospital मैंने देखा है कि they only have diarrhea and they are corona positive. Because loss of smell, if common cold, maybe when your nose is blocked, you don't smell things. So it's a very common symptom in both corona and flu. So most of the people, they don't even have symptoms, but जो common symptoms है वो बिल्कुल एक flu जैसे symptoms होंगे. Not only loss of smell or loss of taste. So people need to understand that the symptoms are very common for this virus. And most common ones are fever, cough, and shortness of breath. So how do we spread the virus? So basically this virus is spreads through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. इसलिए there is a trick that आपको अपना हाथ ऐसा रखना चाहिए when you're sneezing कि droplets आगे surroundings में ना जाएं. Basically these droplets are very heavy, so they don't go so far. इसलिए आपके hands पे आपके surroundings like tables, chairs, इन पे droplets गिरते हैं.
and they can stay there for good 24 hours. If people breathe in this infected environment, it's very easy for them to get this virus. इसलिए मना करते हैं कि you don't have to touch your face, your hands, your nose, especially after sneezing. It's better कि आप जाके अपने hands sanitize करें, because बहुत easily ये spread हो सकता है virus. एक single sneeze जो हमें छींक आती है, उसकी single sneeze, then they can produce up to 10,000 droplets, and they can stay on the surface for about 24 hours. So when you sneeze and the droplets are on the surface and आप clean नहीं करेंगे, so anyone who comes in your house and they are sitting using the table or chairs, they can get the droplets on them and you can get the virus. अब इस virus का test, how can we test this virus? It's like बहुत ही simple test होता है, which we call nasal swab test. इस test में there is a tube. It's a stick basically. It's like soft brush होता है. They put it in your nose and they have to move it around. And वहाँ से sample निकालते हैं. And then that sample goes to the lab, and within 24 hours you get the result. It's either positive or negative, but within 8 hours भी result आपको मिल सकता है. So what do we do if we are corona positive? So if you're negative, you have to self-quarantine for 14 days. Why is that? Because as I said, के symptoms इसके ज़्यादा दिन 14 days के अंदर show हो सकते हैं. So you have to be in quarantine for 14 days, even if you're negative. But what if you're positive? So usme bhi we have to start with self-quarantine for 14 days and monitor our symptoms. Because we can get very mild symptoms. Because un symptoms mein like, slight cough or fever, हमें medical care की need नहीं होती. We can just have Panadol and like home treatment कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा difficulty हुई in breathing, or you're getting very, आपकी chest में pain हो रही है, और आपको बहुत ज़्यादा severe symptoms हो रहे हैं, then you have to seek medical help. फिर आप hospital में जाएंगे, they'll treat you, and even once you are recovered, you have to come home and you have to quarantine yourself for 14 days. Because अगर आपको एक दफ़ा corona हुआ, it's very possible कि आपको again हो. Again, 14 days is the limit, because symptoms 14 days में ही show होते हैं. इसलिए self-isolation is very important even once you are recovered. So how can we prevent coronavirus? There are very simple tips. First of all, we have to wear a mask. You have to cover your mouth and nose in public areas, because even if you don't have the virus, आपको नहीं पता आपको virus है कि नहीं, you can still spread it. So it's better to wear a mask all the time. And mask कैसे पहनते हैं? It has to cover ऊपर नाक से लेके नीचे mouth तक. ये नहीं कि when we go out, some people are not wearing their masks properly. उनकी nose आप देख सकते हैं, और नीचे करके वो बात करते नहीं. You have to talk while you're wearing your mask. And please do not reuse the mask, because आप वो mask दोबारा use नहीं कर सकते. Your droplets are on that mask. So in a way, आप अपने आप को ही expose कर रहे हैं. So do not reuse the mask. Once you wear it, you have to throw it right away once you are done with the mask. Second thing, you have to maintain social distancing. It's very important. आपको ध्यान रखना है कि you are standing at least 2 meters or 6 feet away from the person you are talking to. Because as I said, if you sneeze when you're in close contact with someone, and if you sneeze, the droplets will land on their hands or on their face. So it's very important to maintain social distancing and avoid big gatherings. Because in Kuwait, especially, the virus इसी वजह से ज़्यादा फैला. There are too many social gatherings and people are not taking like minor steps towards it. You have to maintain at least 6 feet distance between the person you're talking to. Third thing is you have to wash your hands. You have to wear gloves, especially when you're going out to supermarkets and shopping malls, because after supermarket, maybe if you're buying fruits, or in shopping malls, you're looking at the clothes, you are touching them, right? So you have to wear your gloves. And again, please do not reuse your gloves. आप जैसे supermarket या बाहर से आए, throw them away. And please wash your hands with soap and water, and keep a sanitizer with you all the time, and keep sanitizing your hands. A lot of people complain कि हम लोग sanitize करें, हमारे hands dry or whatever, but आप moisturizing cream भी साथ रखें. So whenever you sanitize your hands, just put moisturizing cream and wear the gloves again. But again, do not reuse the gloves or the mask. This is very important. Other thing is, please do not touch your face, mouth and nose, because as I said, कि जब आप
sneeze karte hain, the droplets, they land on your hands, on your surroundings. So if you're touching your mouth or your face or your nose, वो droplets आपके face पे जा रहे हैं, and it's very easy for the virus to spread. आप easily infected हो सकते हैं. So it's very important that you have to wash your hands before touching your face or your mouth. Other thing is you have to clean and disinfect. As I said, you have to clean your house every day with soap or bleach or Clorox. Clean your tables, clean your chairs, clean your house every day. It is very important because, as I said, अगर आप बैठे हुए आपके droplets आपके tables, chairs पे हैं, जो भी आपके साथ आके बैठेगा, they will get infected as well. So once you see कि आपको लग रहा है, okay, you have been using that table or your chair a lot, please इसको साफ करें with soap and bleach every single day. It's very, very important. It's one of the the main prevention you can do at home. ये होगी हमारी prevention के बाद. Now we have to look at our immunity because exactly we live in Middle East and we are eating fruits, vegetables जो भी बाहर से ला रहे हैं, and they are not clean, and our immunity is not as strong. So we have to work on our immunity as well. Prevention is important, but immunity is also important. So बहुत ही basic tips हैं. Exercise every day. Every day walk for 30 minutes. और अगर आप बाहर नहीं जा रहे, आप घर पे walk कर लें for 10 minutes. Do simple exercises. It will help. Other thing is you have to eat a very healthy and a balanced diet. Please avoid junk food. Bahar se burgers and all the junk food we are eating these days, we have to avoid them. Make sure that you're taking more, drinking more water, and you're drinking more fresh juices, and you're eating more fresh vegetables. These are very important. These actually boost your immunity. The other thing is, please get quality sleep. I know a lot of people, because of this corona, they are bored. They don't sleep at night properly. They're awake till 3 and 4, and then they wake up at 9, 10. They are tired the whole day. No, you have to get your 8 hours of sleep. Other thing is you have to reduce the stress. Jo I think my other fellows will talk about that in a bit. And we have to take a lot of vitamin C, vitamin A, and vitamin D. Zuini hai that you have to take supplements. You can have orange juices. वो vitamin C के लिए बहुत अच्छा है. If you want vitamin A, you can eat more green vegetables. You can drink more milk. Have eggs in the breakfast. For vitamin D, you can eat salmon. You can eat tuna. These are very good foods for the vitamins, and all these vitamins actually prevent the infections, and they boost and strengthen your immune system, which is very important these days. At the last but not the least, I would like to talk about a few tips which are very important. We have to use them to be safe, to be away from the virus. सबसे important thing, please wear the face mask. Me as a doctor, I have been working in Bahrain in the tent, and I know it's very exhausting to wear masks, but even now when I go out, I actually wear 2 masks. It's very important to wear masks. Please wash your hands. Please drink more water. Keep a good distance between people. And inshallah, this will go away, but we really have to take care of these things. These are very simple things to do. You have to, if you feel sick at home, please go see a doctor right away. It will take 8 hours to get yourself tested. And it's very important to boost your immune system. If your immune system is good, even a normal, like common flu won't give you any symptoms. So this is very important. And at the end of the day, we all have to work together to stop this coronavirus. At least हम gatherings थोड़ी बंद कर सकते हैं, small gatherings रख सकते हैं. Even at home when you have a gathering, just make sure करें that you are sitting 2 meters away and you're wearing masks. And inshallah, by all doing this, these are very simple tips. If we do them, we can actually do a very big thing, and we can actually stop this virus from spreading. And according to World Health Organization, I was reading before 2 days, they said the vaccine should be ready by the end of this year. So there is still hope that we can, that this virus will go away from our lives. But till then, we have to take care of ourselves, and we have to follow these simple tips that I shared. We need to prevent the virus by wearing a mask, social distancing, wash your hands, clean
everything's around you, and it will be fine. So these were some of the tips I wanted to tell all of you. And please, I have given my presentation to Fawzia Aunty. So I just want you to go over the presentation. I have attached some useful links at the end of the presentation, and they are in very simple text. They talk about coronavirus, how we can spread it, how we can prevent it, and how we can boost immunity. There's a very good link, and they have all sources of vitamins and everything. You guys can go and read about it. And yeah, I hopefully it helps everyone. And that should be it from my side. Thank you so much for listening. Thank you so much, Mariam. आप वैल्यूएबल हमें इंफॉर्मेशन देने का, और आपके प्रेजेंटेशन बिल्कुल मेरे पास है, इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर दूंगी एंड ऑफ द इवेंट। जी मनाइल, आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर जी अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली अगर हम कनेक्टेड हैं, एवरीवन कैन हियर मी। First of all, thank you very much for all of you for coming and joining us। और बहुत अच्छा लग रहा है फिर से सबको देखकर, और इस बार हमारे साथ कुछ नए चेहरे भी हैं। मिस फौजिया ने इंट्रोड्यूस किया था सबको, और हमारे जितने कंसल्टेंट्स हैं आज ऑन बोर्ड, थैंक यू वेरी मच। मिस मरियम, आई हैव बीन हियरिंग टू योर स्पीच एंड ऑल, इट वाज रियली हेल्पफुल। आपने बड़ी थैंक यू हेल्पफुल टिप्स दिए हैं हमें, और डेफिनेटली आप ऑन ग्राउंड हैं एंड फील्ड हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो टिप्स हैं वो हम तक पहुंची हैं, और बाकी लोग भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी मिस सदफ शमीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और काउंसलिंग, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी काउंसलिंग है क्या। Counseling is basically a conversation between two peoples. It's a face-to-face meeting and open-ended meeting. इसमें आप बात करते हैं, आप बताते हैं अपने बारे में, आप conversation करते हैं, आप बताते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कोई जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, आपकी कोई जजमेंट्स नहीं हो रही होती, तो यू नो बात सकते हैं, और आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो कि आपको कब लगता है कि आपको काउंसलर की जरूरत है? जब आपको लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग टू मच हैवी ऑन योर माइंड, तो आप बात कर सकते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं। आप जो है, आपको कनेक्ट होना चाहिए, आप 5 लोगों से आपको कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं, या आप मैं इससे कैसे रिलेट कर सकती हूँ उससे इफेक्ट्स ऑफ जो हमारा टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन आवर मेंटल हेल्थ, वो आप इस तरह 5 लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोलीग से कर सकते हैं, और थेरेपिस्ट से कर सकते हैं, या मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, तो आप बात करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। देयर आर सो मेनी अदर वेज, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जब आप उससे बात करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स, आपका एक गोल सेट हो जाता है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। तो आपको बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो मेंटली अनस्टेबल हैं, क्रेजी हैं, या जिन्हें, जो हमारा एक स्टिग्मा है ना सोसाइटी का कि इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आप उससे बात करें। और इवन जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी तो हमें वो सुनना पड़ता था कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को कहते थे साइको डिपार्टमेंट ना। तो एक हमारा स्टिग्मा है, इस तरह जो है, इस तरह होना नहीं चाहिए। जब आप बात करते हैं तो आपको बड़ा क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की। देखिए, और कोरोना से रिलेटेड अब मैं आपको बताऊं कि सेल्फ आइसोलेशन है, क्वारंटीन है, सो मेनी अदर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं कि सेल्फ आइसोलेशन जो है और सोशल डिस्टेंसिंग, लोग इसको एक ही वो जो है ना
एक ही जुमरे में ले आते हैं। लेकिन देखें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। सेल्फ आइसोलेशन में ये है कि आप ये नहीं है कि आप पे पाबंदी, आप बाहर नहीं जा सकते, वॉक नहीं कर सकते, आप कोई अपने न्यू रिचुअल्स, न्यू रूटीन्स, आप अपना नया काम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे। आपको बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप सिर्फ ऑडियो सुने न्यूज़ की। ज़ाहिर है दुनिया से अपडेट भी तो रहना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि जो विजुअलाइज्ड हो रहा होता है न्यूज़ के साथ, वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं, दे आर वेरी स्केरी। वो जो आपका माइंड जो है वो विजुअल चीज़ों को ज़्यादा अटैच करता है, आपकी मेमोरी में चीज़ें अटैच हो जाती हैं। तो वो इट्स लाइक अ वेल्क्रो कि जितनी चीज़ें स्टक होती जाएंगी आपस में, विजुअल इमेजेस प्लस आप जो कुछ सुन रहे हैं वो सारा आपका कहीं माइंड में अटैच होती जाती हैं चीज़ें। फिर आप मुसलसल अगले दिन और सुनते हैं, अगले दिन और सुनते हैं, तो वो फिर वो उनको मतलब वो शेक करना, उनको डीअटैच करना, अपनी ऑल नेगेटिव थॉट्स को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना वो मुश्किल होता जाता है। इट्स लाइक क्लींस करना है आपको सारा जो है। आपको वो ये नहीं कि आप न्यूज़ सुनिए और आप फिर दोबारा उससे सुने और देखें, इस तरह आपको नहीं करना। इस तरह ये होगा कि आप ज़्यादा जो है ना फियर में चले जाएंगे। और आपको पता है जो फियर है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत डैमेज करता है, रादर देन डाइट्स और ये वो सब चीज़ें जो साइकोलॉजिकली रिसर्च प्रूवन है कि अगर आप फियर में हैं तो बेसिकली वीकन्स योर इम्यूनिटी। ठीक है, भले आप विटामिन सी लेते रहें रोज, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप खौफसत हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगी। इसलिए आपको चाहिए आप अपना मोरल जो है वो हाई रखें। ठीक है, डिस्कशंस के थ्रू क्या होता है, आपकी कंफ्यूजन दूर होती हैं, आपकी सफरिंग्स दूर होती हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन सिचुएशन में एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इट्स लाइक अ मैजिक, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक फिक्स। ठीक है, काउंसलर जो है वो आपको हेल्प करता है। इट्स एन इनेबलिंग प्रोसेस जिसमें आप चेंजेस लाते हैं। किसके थ्रू चेंजेस लाते हैं? आप थ्रू लर्निंग लाते हैं। ठीक है, थ्रू मेकिंग योर ओन डिसीजंस लाते हैं, एंड यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इज नॉट जस्ट जादू की छड़ी नहीं है, वो आपको इस तरह करेगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जितना हमें टाइम मिल रहा है, ये देखें, न्यू रिचुअल्स बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, आप एक टिप मैं आपको देती हूँ, आप इस तरह करें कि आप एक दिन की पूरी एक्टिविटीज को आवर बाय आवर राइट डाउन कर लें पेपर पे, एंड द नेक्स्ट डे आप उसको रेट करें उन एक्टिविटीज को 0 to 10। ठीक है, 0 to 10 उनको रेट करें, कॉलम बना लें इस तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट डे आप देखें, आप अपनी एक्टिविटीज को देखें कि इस एक्टिविटी को आपने कितना टाइम दिया है, इट वाज रियली वर्थी और नो, इट कैन ब्रिंग एनी पॉजिटिव चेंज ऑन यू। और ये आप बहुत ज्यादा न्यूज सुनना, और यू नो देयर वर सम वॉइस मैसेजेस सर्कुलेटिंग, आई डोंट नो किस अजीब तरह के मैसेजेस थे वो, कि कोरोना तो है ही कुछ नहीं, ये तो एक फेक स्टोरीज हैं और लोगों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल मत जाना। तो नहीं, मैंने तो खैर बड़ा काम किया था उस पर, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कि इस तरह नहीं है, आप इस तरह की स्टोरीज से दूर रहें। सब कुछ आप अपनी वो जो आपने कॉलम बनाए हैं उसमें आपने एक दिन की एक्टिविटीज लिखी है, उस एक्टिविटीज के आगे आपने उनको रेटिंग कर देनी है 0 to 10 कि इस एक्टिविटीज ने आपको, आप खुद ही देखेंगे, आप नेक्स्ट डे उठेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने इस फजूल सी एक्टिविटीज पे कितना टाइम दिया, नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया मेरी जिंदगी में, इसको मैं नेक्स्ट डे मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह करें आप। और जब आप बात करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, बात करते हैं, आपको हम आपको, आपकी बातों में ही होता है सारा कुछ, आपका जवाब, आपका इलाज, सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है। जस्ट आप
एक्सेप्टेंस लाते हैं, उन थॉट्स में एक्सेप्टेंस लाते हैं जो आपको लगता है कि वो शायद आप किसी से बात कर नहीं सकते, शायद आपको लगता है कि इस बच्चों वाली बात है, या इस रिडिकुलस, या शेम, या एम्बैरेसमेंट, या कुछ भी इस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट, एक आपको काउंसलर, एक आपको बिल्कुल अनबाइस्ड आपको वो करता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखता है और आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप बोलें, वो एक आपको नॉलेजेबल गाइड देता है। और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है आजकल के इस दौर में, और ये कोरोना क्राइसिस में बहुत ज़रूरी है ये सारा कुछ। इवन मेरी मदर को मैं मैं उनके ऑनलाइन सेशन ले रही थी, उनसे बात कर रही थी, उन्हें बता रही थी सारा कुछ। तो इट्स अ वेरी नॉलेजेबल गाइड। आप अगर किसी इस तरह बात करना चाहते हैं कुछ भी, तो मैं तो अगर इसके बाद भी कोई मुझसे बात करना चाहे और कुछ भी पूछना चाहे तो आई कैन वॉलंटियर माई सेल्फ। आप फौजिया से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। और मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस का भी हमने ये कहा था कि आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें तो हम उस पर ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हमें कि आप क्या बात पूछना चाह रहे हैं। तो हमारा जो है ना, हमारे माइंड को, पॉजिटिविटी को, मोरल्स को इस सारी कंडीशन में बड़ा हमें वो डेडिकेटेड और मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई एक चाहते हैं कि आप बस ऊपर से काम करेंगे और ऊपर से आप शो करेंगे और कि आप सही हैं, बिल्कुल मेंटली हेल्दी हैं, तो इस तरह नहीं होता। लाइक आप कोई लैपटॉप लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, अगर आप इंटरेस्ट नहीं है और आपके अंदर नेगेटिविटी है एक्चुअली, तो आप उसको चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं आता उस न्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे भी, क्योंकि उसका जो अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर है उसमें वायरस है, ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ जो है वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके देखिए, आपके रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब में, और इसको बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें इस पे कि आपने कैसे मेंटली जो है वेलनेस, माइंड, बॉडी, सोल, आपने किस तरह पॉजिटिव रहना है। आपने अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को पॉजिटिव रखना है एक्चुअली। बहुत सारे मैंने देखे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वो ना खुद रहे हैं इस सिचुएशन में पॉजिटिव और ना वो दूसरों को रख रहे हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी पॉजिटिव रहें और हम अपनी सराउंडिंग्स को भी पॉजिटिव रखें। जी मनाहिल, आप पूछ लें, अगर किसी को कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। लिसनर्स से गुजारिश है ये, बल्कि मैं चाहूंगी कि बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर क्वेश्चन करना चाहे इनसे मजीद, और अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो फिर लास्ट में मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी आपसे। पूछ सकती हूँ। आपने ये बात की इसमें, ऑब्वियसली आपकी सारी बातें बहुत अच्छी थी, प्लस आपकी जो साइकोलॉजी के हवाले से जाहिर है कि हम ब्रेन एक ऐसी मशीन है जिसे हम किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे डेवलप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटीज को। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, जब आप मेंटल हेल्थ की बात कर रही हैं, तो आज के टाइम पे जिसमें हम बहुत सी चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं, एक ड्रास्टिक चेंज आया है हम सब की लाइफ में, जाहिर है हम में से किसी को लॉकडाउन की आदत नहीं है, हम में से किसी को इस सब चीजों की आदत नहीं थी जो कि अभी हम रह रहे हैं। तो हम मेंटल हेल्थ के लिए हम स्पेशली जब कोई इंसान क्वारंटीन में है जो पॉजिटिव आ गया है, उस टाइम पे वो अपने जो मेंटल कैपेसिटीज हैं उसमें वो अपना फियर फैक्टर कैसे कम करे, क्योंकि हम बिल्कुल जैसे आपने बोला कि न्यूज में भी हम सुनते हैं बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं कोविड से। अगर कोई शख्स पॉजिटिव हो गया है और वो माइनर सिम्टम्स के साथ है या एक्यूट सिम्टम्स के साथ है, अगर उसको कुछ ऐसा इंडिकेशन आता है और वो सेल्फ आइसोलेशन में जाता है, उस टाइम को वो कैसे जो है वो रेगुलेट कर सकता है। लिस्टिंग बनाने की बात आपने किया, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, लेकिन समटाइम्स जब आप सेल्फ आइसोलेट हैं, जो इंसान अकेला घर में बैठा है और वो पॉजिटिव है, वो अपने माइंड को किस तरफ डाइवर्ट करे, कैसे डाइवर्ट करे कि वो एक नॉर्मल रह सके उस चीज में, विदाउट ब्रिंगिंग इनटू द रिलीजन पार्ट एंड ऑल दैट कम्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट
दिस इज समथिंग लाइक कोविड को तो नहीं पता कि हमने नमाज पढ़नी है. कोविड इज लाइक बियॉन्ड दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट. ठीक है. तो हम उस चीज को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए? देखिए, इतना आपके पास टाइम है तो आप जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. और देखिए, आप अपनी फोटोज अरेंज कर सकती हैं, फैमिली फोटोज. आप बिल्कुल एक एल्बम बना सकती हैं, ठीक है. उसको सारे को जान के आप डेट वाइज अरेंज कर सकते हैं. और आप मतलब जॉब में और इतनी बिजी रूटीन लाइफ में जो आप पता नहीं एक एक कितने मंथ से आप अपने रिलेटिव से, सिबलिंग से, बहुत सारे इस तरह के हैं जिनसे आप बात नहीं कर सकते थे अपनी मसरूफियत की वजह से. आप स्टे इन जी. टच रह सकते हैं उनसे, उनको वीडियो कॉल्स करें, बात करें, अपने जी. फोटो आप जो है पूरा उनको डेट वाइज और पूरा अरेंज कर सकते हैं, ठीक है. बहुत ठीक है. सारी अभी हमें वो रीता बल्कि बताएंगी भी, हेल्दी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपको रिलैक्सेशन होती है. और ठीक है. एज पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑलरेडी आपने बताया कि वो तो ठीक है कि हम नमाज पढ़ें और ज्यादा मतलब अल्लाह ताला से हमारा कांटेक्ट अच्छा हो. तो अगर आपके बच्चे हैं, आप नहीं बच्चों के साथ तो खैर सेल्फ आइसोलेशन में भी इतना सेल्फ ज्यादा आइसोलेशन है. हाँ जी, एग्जैक्टली. लेकिन आप जिस तरह आप देखिए ऑनलाइन हम कर रहे हैं, इस तरह कर सकते हैं ना, गाइडलाइन दे हाँ, सकते ऐसे. हैं. थैंक यू बहुत सदा. आपकी ठीक बात है. बिल्कुल मैं एग्री करूंगी. इस कोविड की वजह से जो फियर था उसने फैमिली बॉन्डिंग भी पैदा की है. उसने हम सबको इतना टाइम दिया है कि हम सब ने अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारा और हमें पता चला ये भी अच्छे लोग हैं. चले मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सफा जावेद, जो हमारी वो अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है. वो कुवैत में भी काम करती हैं और गल्फ में है, वो दुबई में भी उनके वहाँ पर भी वो सर्विसेज देती हैं. हमारे साथ आज मौजूद हैं. जी सफ़ा. Basically clinical psychologist हूँ मैं. I've been working in clinical setup for about 14 years I would say. School setups में भी मैंने काम किया है as a counselor and as a clinical psychologist. School setup I mean American and British system in Kuwait. मेरा age range है that is between 2 years and as long as the person lives, but in the schools it's from 2 to 21 years old. जिसमें especially बच्चे भी शामिल हैं और toddlers, you know, the ones who cannot even speak, but I have to guess from their body language what they want to say. So this was something for the audience to know that in future, let's say if they have a child and they don't know where to go, I'm here, I'm available, and you can contact me anytime with my emails or my WhatsApp. अच्छा जी, one thing that Fawzia ji said, घर वालों के साथ टाइम गुजार लिया, ये भी अच्छे लोग हैं. This made me laugh a lot. I think इसीलिए मेरा Zoom चलना शुरू हो गया. अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं regarding the corona. So basically, corona, any pandemic can be stressful. It's not only about corona. The only thing is coping with stress in a positive way, in a healthy way is very important. हम लोग panic कर जाते हैं, which causes the damage to the immunity and in the system itself. अब सबसे पहले तो I would let you know what does a pandemic causes, kind of, rather it जो आ चुके हैं or the recent one. Pandemic basically जब आता है, it causes anxiety of the unknown, little or no knowledge about the breakage of the infectious diseases. Uncertainty आ जाती है लोगों में. There is an increased level of stress because उनको समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है हमारे आसपास. There is an increased level of fear, which means fear and fear of dying, yourself or your loved ones, आपकी family में. So there is an increased level of fear which is related to dying, which is related to death itself. और ये सबसे जो है ना, I would say डरावना किस्म का fear है out of all the fears. Sleep or eating patterns are disturbed a lot. As I heard with one of my fellow,
she was saying इसकी वजह से भी बहुत सारा जो है ना स्ट्रेस एलिवेट हो जाता है। जो साथ हैं क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस हैं वो एलिवेट हो जाती हैं, दे गेट वर्स। कोई अगर किसी को अलार्म करे पहले से कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, दे गेट वर्स विद द पेंडेमिक्स। अब ये तो था जो पेंडेमिक कॉज करता है, अब क्वारंटीन क्या कॉज करता है? I was talking about what does pandemic cause and what does quarantine cause. So pandemic जो चीजें cause करती हैं वो मैंने बताई। अब जो quarantine चीजें cause करती है, that is a lot of frustration, a lot of anger in people because they are being isolated or they are being aloof by their own choice. Irritability is one of the things जो बहुत ज़्यादा आ जाती है लोगों में, and it has no, I would say, limit. इंसान किसी भी हद तक चिड़चिड़ा हो सकता है, to an extent where they decide to break things. इस हद तक भी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। Depression is one of the other things. Depression could range from mild to moderate to severe, any range. Depression की भी there is no range. Panic behaviors is one of the other things, which means there is an increased level of anxiety. अब जब anxiety बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, there will be an increase in the anxiety. Obviously, people will start panicking. Anxiety आती है pandemic से, but people panic when they are quarantined. That's where they start panicking. And when people panic, they are hopeless, they are helpless, they don't know what to do. Then that's the time when they need to go to see a therapist or a psychologist. But होता क्या है, जैसे अभी कोरोना में हो रहा है, there is nobody available online. You have to wait for the appointments, and there is absolutely no way that anybody would see you in person. कोई appointments ही नहीं है ना, कोई therapist available ही नहीं है in person. इससे panic और बढ़ जाता है in the community. What else quarantine may cause? Insomnia. लोगों की नींदें खराब हो जाती हैं. Eating habits, they are बिल्कुल upside down. I am going to talk about children and teens in general because I want to basically let you all know कि बच्चों के जो behaviors हैं, they deteriorate with so many factors, but the only thing that we label them or we tag them is बड़ा ही बदतमीज बच्चा, बात ही नहीं सुनता, इसको तो असर ही नहीं होता, you know, those kind of things. But that's not something that has to do with the child. It has to do with the atmosphere that you're providing the child. Being a student can be sometimes very challenging, even aam halat mein bhi, when there is I would say normal jaise situations thi pehle. Being a student can be challenging for so many students, but is pandemic ne basically life ko jaise mushkil kar diya. Education has gone even, you know, far beyond that. Education is very difficult now. Ab wo bacche jo school jate the, they had a schedule, they had activities, they had like everything, jam packed schedule है. अब क्या हो रहा है? There's no school, absolutely. They're exhausted because of the games or, you know, sleeping or eating. But it's not of exhaustion जो उनको तब मिलती थी जब वो स्कूल में होते. So basically, there is no exhausted body. There is no exhausted mind. इस वजह से there is an increase in the learning difficulty, or I would say the learning disorder children. LD पहले ही बहुत ज़्यादा था, especially Kuwait में, because it's a multilingual country, and people tend to focus not on their I would say home language. They tend to focus on other languages, which causes learning disability even worse. लेकिन अभी क्या हो रहा है, because kids are not going to school, वो बच्चे जिनको ज़्यादा attention चाहिए होती थी, they are lacking behind in so many areas. एक बच्चे को मैथ नहीं आता था, the teacher is giving her extra attention. अब वो extra attention कहाँ से मिलेगी? It's not available anywhere. It's not available in online classes. It's not available at home. Tutor नहीं है. Things are getting worse. बच्चों में frustration बढ़ रही है, just like the older, people, adults. LD के साथ attention deficit जो behaviors हैं, उसमें भी there has been increase. अब LD रिपोर्ट नहीं हो रही because बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन attention deficit रिपोर्ट हो रही है because the kids have been really hyperactive.
माँ बाप को समझ नहीं आती इनके साथ क्या करना है, और अब माँ बाप उन टीचर्स को दुआएं देते हैं जो सारा दिन उनके बच्चों को अपने घर अपने स्कूल में रखते हैं, and they kind of tend to raise their kids, not teach them. अब this is all about when the kid is not going to school, when the kid is not getting attention deficit related symptoms जो हैं, they are actually related to quarantine, I would say, not going to school. जैसे कुछ बच्चे जो attention deficit होते हैं, they need visual reminders from the teacher. या let's say teacher उनको next जो है ना front desk पे बिठा लेते हैं अपने पास. अब वो क्या करें? ऑनलाइन क्लासेस में तो ये अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में तो विजुअल रिमाइंडर्स भी नहीं है. कुछ अटेंशन डेफिसिट बच्चे जो हैं, दे नीड अटेंशन ब्रेक्स. अब अटेंशन ब्रेक्स तो मिल नहीं सकती बच्चों को बिकॉज द टाइम लिमिट फॉर द ऑनलाइन क्लास इज वेरी लिमिटेड. अच्छा, एक तो ये हो गया, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल. Secondly, there is no socialization at all. Same age group के बच्चे जो है ना, they have a different setup of peers. अगर बच्चा अपने peer group में involved नहीं है, that is again not okay for his health. They talk out, they burn their energy. अब वो same age के बच्चे हैं, they have similar activities. जब बच्चे को वो availability नहीं मिल रही है, that is another way of frustration. It causes depression in the child. अब बच्चा ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कितना भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो इन टच रहे, दिस इज नॉट लाइक गोइंग आउट एंड प्लेइंग फुटबॉल. आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, फुटबॉल नहीं है, स्विमिंग नहीं है, रेसेस नहीं है. सो ऑल ऑफ दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन. लिस्ट डाउन कर दूं, बिकॉज हर बच्चा, हर टीन एज सेम, आई वुड not in the same way. They don't react in the same way. They don't respond to stress in the same way. अब कुछ बच्चे जो है ना introvert होते हैं, some of them are extrovert, some of them are very expressive, some are not. अब इसमें if you see your child crying excessively without any reason, or you notice ये बच्चा ऐसे तो नहीं होता था पहले, तो or the child is very irritable for any reason, this is a symptom. This is one of the things that you should be concerned about. If the child is returning to the behaviors they have outgrown, just say, let's say toilet training, let's say thumb sucking. अगर एक बच्चा इन सब चीजों से outgrow कर चुका है, लेकिन दोबारा उसने ये सब शुरू कर लिया है, which means the child is seeking a lot of attention. The child is crying for attention, and this is one of the other signs of a child who is getting depressed. Excessive worry, excessive sadness, unhealthy behaviors, unhealthy habits बच्चा develop करने लगे. This is one of the biggest concerns, and especially during this corona, अगर आप लोगों को अपने बच्चों में इस तरह के कोई symptoms नजर आते हैं, you need to seek help. You cannot just ignore those symptoms. अगर poor academic performance है, it's okay. But if there is consistent poor academic performance, then yes, this is a big problem. मैं कह रही थी कि अगर poor performance है academically तो it's okay. But अगर consistent poor academic performance है और पहले बच्चा ऐसा नहीं करता था, this is one of the concerns that you should not ignore about the child. अगर avoidance of behaviors है, especially those activities जो बच्चे पहले enjoy करते थे, they used to love to do those things, but अभी नहीं करना, मुझे नहीं जाना, I don't want to see that friend, I don't want to do this. अगर आपको avoidance behaviors नजर आ रहे हैं अपने बच्चों में, this is another concern. You should be concerned about these things. These are all of those things that eventually cause a child, either they are categorized into anxiety or they get depressed because of all of this pandemic that is going on. अगर somatoform symptoms नजर आते हैं, somatoform symptoms, I mean to say, let's say unexplained body pain. मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है आज, मैं तो उठ के जा ही नहीं सकता, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आज ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी. If your child was not doing all of this before, then this is a concern. Or some of the teenagers, I would say, start tobacco use, cigarette पीना शुरू कर दिया, alcohol, the kind of drugs, and all of this is very much available in. अब
ये तो बात हो गई बच्चे are not going to school and this is causing a lot of depression in them and the behavior is deteriorating. They get aggressive. There is a lot of increase in the violence behaviors because उनको समझ नहीं आती क्या करना है. उनको ये नहीं. Let me tell you about जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, this is what is being caused. अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, what is he doing? अब क्या करेगा वो बच्चा जब स्कूल नहीं जा रहा तो? What are the best activities to stay at home and what could be the worst activities that he could do? अब एक जो सिंपल बात है जो हमारे समझ में आती है वो ये है, सुबह स्कूल नहीं जाना, चलो 1 बजे उठेंगे, चलो 12 बजे उठेंगे. सोने की और जागने की रूटीन तो खुद ही चेंज होगी ना ऑटोमेटिकली क्योंकि स्कूल नहीं जाना. अब खाने पीने की भी रूटीन चेंज होगी क्योंकि स्कूल नहीं जाना. जो ब्रेकफास्ट हुआ करता था वो अब खाना होता है या शायद 4 बजे खाना होता है. इट्स द लेट लंच. अब जब बच्चा दोपहर में उठ रहा है, the whole system is being disturbed. Sleep and eat is one of the basic things जो we focus on. If I have a client with anxiety or depression, the first thing I tell them to do is कि घर जाओ और अपना sleep और eating pattern ठीक करके वापस आओ. I cannot help you without this. I cannot. Absolutely. This is naturally अल्लाह ताला का बनाया हुआ system है. If we are not following this, I cannot. No psychologist can help you. और हम स्पेशली एडल्ट्स प्लस द हम खुद अपना सारा सिस्टम अब उल्टा कर रहे हैं बिकॉज स्कूल नहीं जाना, कोई ज़रूरत ही नहीं है सुबह 6 बजे उठने की. दिस इज़ रॉन्ग. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड इंसिस्ट टू द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों का स्केड्यूल उसी तरह रखें जैसे पहले था. The other thing is what else could the kids do? अब बच्चों के पास और घर में करने को तो कुछ है नहीं है. So either they will watch movies or they will, plug in some videos, video games, or YouTube. At worst, I would say at worst, YouTube. But the point is, who is checking on the kids when the kids are watching YouTube? There is a lot of age-appropriate stuff for them, and there is a lot of non-age-appropriate stuff for them. But उनको watch करने के लिए who is there? I don't know if I'm cutting out. I don't know if my No, line you're is not. cutting out. Naini, it's Okay. clear. We can hear you. Yeah. With me, everything was black. I thought I just got cut out. No, it's fine. ठीक है. This is where my next segment comes in, where I would say how this whole pandemic has affected the marriages, in a negative way, because the kids are there, but it's a responsibility of one parent. It's single parent responsibility. This is where the next issue comes in. Parents basically, are these two people doing, I would say nothing at home. These days, कभी-कभी ऐसा होता है कि mothers are either busy with relatives or चलो ड्रामा देख लेते हैं, चलो कहीं बुला लेते हैं घर में किसी को, और तो कहीं जाना नहीं है, चलो मिलकर चाय पीते हैं, that kind of stuff, because it's like a releasing time for them. और तो as if like it's a summer vacation for them. But I'm not talking about all men, and I'm not talking about all women. This is a general observation, I would say. Or I would say this is a general reporting that I have had in the last 6 months. Most of the clients, most of the people who have contacted me had similar or, concerns. Okay? हमारे घर में तो हिसाब किताब अब ऐसा हो गया है, ऐसा पहले नहीं था, उल्टा हो गया, I mean to say. So, sometimes ये होता है कि mothers are just too busy. They are just too busy with खाना पका लिया, अब कपड़े धो लो कल के लिए, अब उनको इस्त्री भी कर लो, household stuff इतना ज़्यादा है और जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा उन्होंने अपने पर डाली हुई हैं that they don't have time for kids. अगर कुछ थोड़ा सा time बच भी जाता है, little time by the end of the day, उनमें इतनी energy बचती नहीं है जिसमें you have the energy to raise a child, to take care of a child. उसमें बस इतनी energy होती है, अच्छा बेटा मेरे पास बैठ जाओ, मैं ड्रामा देख लेती हूँ, तुम कार्टून देख लो, बस let's sit together. No, that's not raising your child. You can cut out the house chores that you are doing. आप laundry कम कर दो, आप इस्त्री कम कर दो, आप खाना 2 दिन बाद पका लो, but do not neglect your child just because
your husband needs food every day, yani fresh food chahiye, you know, that kind of thing. Or you know, if this is a priority, your husband needs fresh food every day, okay, then you know, kahin aur apna compromise kare. But what we generally do is we compromise on children, which is not okay. अब parents में माँ तो ये सब कुछ कर रही है, where is the father during all of this time? अब कुछ fathers हैं during the COVID, they are working from home, वो घर बैठे हुए हैं, they are very much available. अब ऐसा भी excuse नहीं है कि मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं तो 4 बजे वापस आता हूँ, you know, that kind of stuff. But what are they doing? They're trying to work. चलो ठीक है, सुबह ऑफिस का काम कर लिया, चलो let's say 8 to 10, 8 to 12, 2 o'clock ऑफिस का काम कर लिया. In the house atmosphere, अब उसमें fathers are also struggling, I would say, because उनको घर में ऑफिस एनवायरनमेंट मिलता नहीं है. There's a lot of disturbance, बच्चे हैं, you know, और इतना कुछ है, they can't focus. When they're not able to do an input in their own work, जो उनका official work है, they get frustrated. वो irritable हो जाते हैं because they need their own concentration and time, जो उनको नहीं मिलता. बच्चे disturb करते हैं बहुत ज़्यादा. अब all of that frustration is going where? To the children. अब वो बच्चों को कमरे से बाहर निकाल देंगे, डांट डपट करके, चलो बच्चों निकलो यहाँ से बाहर. They are not accommodating them. They are actually making the things worse because बच्चे already आपसे ज़्यादा frustrated हैं with all of this pandemic. अगर आप बच्चों को accommodate करने के बजाय, उनको entertain करने के बजाय, you tell them to leave, that's making the things worse, I would say. Now, some of the parents, some of the fathers, I would say, that I have had complaints of a lot. When they finish their office work, they sit and think, अब क्या करें? टीवी देख लेते हैं. अच्छा जी चलो 3 घंटे टीवी देख लिया. अब क्या करूं? तो सब कुछ देख लिया. चलो अब मोबाइल फोन, चलो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, you know, all of this. चलो जी अब वो भी कर लिया. शाम 5 बज गए. अब क्या करना है? चलो अब गेम्स खेल लेते हैं. You know. So now my point is basically, जो I would talk about, जो online games damage कर रही हैं these days. Online games have caused more damage than anything in this pandemic. So these online games actually did the real actual damage during these 8-10 months to the relationships, marriages and kids. Had it been different situations, had people been wise, ये तो बड़ा bonus time था, you know, men are staying at home, they get to spend time with families, बीवी को time दे सकते हैं, बाद में नहीं दे पाए because of office workload. They could make up for the past, but how are you actually using this work from home time of yours? You know, this is what matters. So most of the men have actually wasted it, I would say. And why I would say that is because instead of choosing what to do, they chose what they shouldn't have done. So they chose the online games, and it's not only men, it's even the teenager boys. So the games that they get into is Fortnite, you know, PUBG, and I mean so many other games. And there is the biggest problem with these games is the language that they are exposed to at an early age that shouldn't be. And the second thing is the violence that is going on in those games. And the third and the most important is the addiction that these games causes. These games are so addictive that the person does not even realize who is game addicted ho chuka hai. The game becomes your priority. The people in the game become your priority. The people living next to you, the people sitting next to you, the people living in the house, they don't mean anything. They don't even exist for you. As long as you are with the phone, the game is on, you're happy. This is the level of addiction जहाँ पे realization खत्म हो जाती है इंसान की. They get irritated. They get, I would say, anger-based behaviors in men have been reported because उनकी games disturb हो रही हैं. This is what is one of the major issues.
अब kids neglect हो रहे हैं, house neglect हो रहे हैं, times are upside down, wife neglect हो रही है, that doesn't matter. All that matters is the game should go on because they have some criteria in the game that they have to fulfill and they have to really reach those goals. अब उनके लिए वो priority बन जाती है. This is not helping the relationships. This is not helping your marriages, what you're doing. अगर अब इसमें से दो तरह के लोग बाहर निकलते हैं जो गेमर्स होते हैं, one who realize and the others who don't realize. अब जिन लोगों में तो realization नहीं होती है, they carry on a frustrated relation with their children, with their family, with their wives. Literally in April, April or May, there was a research, there was a survey that went on, and globally the divorce rate has gone from 27% to 61% just because of this one game that is called PUBG. I'm talking about a global divorce rate. I'm not talking about Pakistani community or Middle East. I'm talking about global divorce rate. जो सिर्फ एक game की वजह. So the other kind of men, what they can do is, yes, the men could actually choose non-addictive kind of games if they want to play once or twice a week, and that's enough for them. Raise your own kids. Don't leave it for the teacher or your wife. You know, बच्चे तो दोनों के होते हैं ना. So raise your kids with your woman. Not, you know, don't expect her to do this alone on herself. In the end, I would quickly just, you know, wind it up before she comes back. I would give you a couple of recommendations. Create a family time, which means a meaningful activities. अब अपने बच्चों के साथ time spend करें with no devices at all, no TV at all. The age limit that most of the research centers have limited for the children is 5 years old, less than half an hour screen time per day. और हमें लगता है कि हम अगर 2 घंटे भी बच्चे को टीवी के आगे बिठा दें तो इट्स ओके, फाइन, बच्चा ध्यान लगा हुआ है. The point is not कि उसको ध्यान लगाना है. The point is if he's learning something or not. So I would request limit the screen time for the kids. Play activities with them. Family time is very important. Let's do laundry together. Let's play in the water. चलो आज कुछ खाना पका लेते हैं. Let's bake something. Let's go out riding a bicycle. और तो मिल नहीं सकते, social distancing है. चलो ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, बाबा के साथ साइकिल चला लेते हैं. और paint together. There are so many board games जो आप इकट्ठे खेल सकते हैं with the family. But the only thing is you have to choose between what you're doing now and what you have to do to raise your child, to raise your kids, you know, in a better way. एक और चीज जो पेरेंट्स कर सकते हैं, अगर बच्चे अपसेट हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, दे कैन टेल देम इट्स ओके टू बी अपसेट, लेकिन the way you express your anger is, you know, how you should think about it. आप अपना, जैसे अगर आपके पास कोई पॉजिटिव तरीका है स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने का, आप वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि अच्छा मामा को जब टेंशन होती है मामा तो ऐसे करती हैं, या मामा को जब गुस्सा आता है मामा तो ये करती हैं. Why don't you try this? So if you tell your teenagers or your young little ones, especially the 3 years, 6 years, 7 years old, they will understand that this is appropriate and this is not appropriate. So you have to be the role model. Anybody else, you know, from outside, they are not going to come and help you with all of this. It's you yourself who have to raise your kids. And with this pandemic, you have to take your family forward. Nobody is going to come and hold your finger. बच्चे जो होते हैं ना, they love to beat their fathers, especially in games. हाँ मैंने तो हरा दिया, बाबा तो हार गया, मैं तो जीत गया. So if you start playing games with them, they would love it. Trust me. These are some things that you can do to actually fix the relationships that have been damaged. I think that is all that I would say. Secondly, with all of this pandemic, I would say reassure your child that they are safe. और बच्चे तब safe feel करते हैं when they have a schedule. They know this is the structure that we have to follow. Structure बच्चों को हमेशा security देता है. Give them a structure at home and give them reassurance that they are safe and nothing will happen to them. They will not have the fear. They will not panic. They will not get depressed. Thank you, everyone. Thank you very much, Dr. Safa Javed, for your time. It was lovely. It was valuable. It was precious, your time and your talks. Thank and you we will so definitely, much. Thank you. definitely, we are not going to leave you like that.
अभी इससे ज्यादा अभी I'm आपको always फिर available. दोबारा हम करते रहेंगे तंग आपको। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे मिस साथ रिदा रहेंगी और अभी रिदा को भी सुनेंगे इंशाल्लाह। जी, प्लीज स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा सबकी इनपुट सुन के, क्योंकि सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। वाकई में कोरोना के अंदर ये सारी चीज़ें हम सबने भी फील की हैं, नो मैटर आप जितने भी एक्सपर्ट हो किसी भी फील्ड के, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग दैट इज सो बिग एंड यू हैव नेवर सीन दिस अपनी पूरी जिंदगी में, इवन आपके पेरेंट्स ने भी वो चीज़ नहीं देखी कि पूरा दुनिया बंद होगी, तो फिर यू डोंट रियली अंडरस्टैंड कि अब इससे कैसे डील करना है। तो मैं जो हूँ, मैं बात करूँगी स्ट्रेस से रिलेटेड ही। मरियम ने जैसे बताया था, वन ऑफ द पॉइंट्स वर कि स्ट्रेस जो है उसको आपने कोप अप कैसे करना है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। कोई भी डिजीज़ हो उसका सबसे बड़ा कॉज स्ट्रेस होता है। आप को हार्ट हेल्थ की इशू है, आपको डायबिटीज़ है, डॉक्टर कहते हैं जी स्ट्रेस ना लें, बट आपको पता नहीं होता स्ट्रेस को कैसे ना लें, क्योंकि आप घर में आते हो और कोई मसला होता है आपका और आपको स्ट्रेस हो जाता है, और उसको कैसे आप रोको, नहीं समझ आती कैसे रोकें। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, सबको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, लेकिन उसको हमें समझ नहीं आती रोका कैसे जाए। तो मैं इससे जो रिलेशन बनता है सोशल मीडिया का, उससे लिंक बातें करूँगी कि हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस को, दैट इज स्पेशली कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, स्पेशली व्हेन यू आर अनएबल टू गो आउटसाइड, और आप अपना पूरा दिन उठते साथ, बल्कि आप अपनी आंखें खोलते हो तो आप अपना मोबाइल पकड़ लेते हो फौरन ही ना, हम सब ये करते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि बेसिकली सोशल मीडिया और साइकोलॉजी का क्या लिंक है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने नेटफ्लिक्स पे बनाई है, उसका नाम है सोशल डिलेमा। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी आपको अच्छी बातें बताई हैं कि सोशल मीडिया जो है बेसिकली जब आप अपना मोबाइल खोलते हो और आप कोई भी सोशल मीडिया की ऐप ऑन करते हो, तो आप स्क्रॉल करते 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 यू एंड अप बीइंग सो एंशियस and drained and dissatisfied with yourself, and you don't understand कि आपके मूड को हुआ क्या है। Can you hear me? Yes. Yes, 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 we can hear you. ओके ओके, तो आपको पता नहीं चलता कि आपको एकदम से क्या हुआ है। आपके मूड स्विंग्स थोड़े से होना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हो किसी एक स्पेसिफिक स्क्रॉल डाउन करते हुए आप किसी भी सोशल मीडिया की ऐप पे गए हो, या तो फिर आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करो और आपको एक मैसेज आया है, तो आपका एक इमोशन ट्रिगर होता है और उसके रिस्पॉन्स में आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड ने बता दिया कि इस बंदे को कोरोना हो गया। देयर वाज अ टाइम इन कोरोना कि हम लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील किया, क्योंकि एक ही दिन में हम लोगों ने 7-8 लोगों को डेथ ली। किसी का जी उनको भी हो गया, उनको भी हो गया, उनकी पूरी फैमिली को हो गया। और फिर बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आप ये लें, और आप वो एक सदा मक्खी का बहुत ज्यादा था, तो लोगों ने वो रेकलेसली लाइक बगैर सोचे समझे पीना शुरू कर दिया था। और आपको नहीं पता कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए एक नेचुरल हर्ब है जो यूज की जाती है, लेकिन उससे भी लोगों को बहुत ज्यादा मसला। सो देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, बट क्योंकि उसका एक्सेस इतना ज्यादा है, देयर इज अनलिमिटेड एक्सेस, तो आपको नहीं पता कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है स्पेसिफिकली। तो हर इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू टेक एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट फॉर यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया जो है इज़ नॉट गुड। ऑफ कोर्स इट हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स। जैसे अभी हम ये जूम कॉल कर रहे हैं, ये बेनिफिशियल है। स्कूल की क्लासेस वगैरह हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी बेनिफिशियल हो रही हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप सोशल मीडिया एंजाइटी जो है यानी कि कैसे सोशल मीडिया डिटॉक्स कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इंसान को साइकोलॉजिकली जब आप पूरी दुनिया से कट के रह जाते हो और आप हर रोज कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, and you are asked to sit at your home and you don't really want that, so that means people need people cannot live without them, and you know वो in itself is a stress कि मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, मैं घर में बैठी हुई हूँ। योर लाइफ इज मोनोटोनस, राइट? इट्स वेरी बोरिंग, इट्स द सेम पैटर्न। सुबह उठे अपने घर में बैठे, घर वालों को देखा, क्या करें। मेरे घर वाले जो हैं हम पूरी दुनिया में हैं, ठीक है, तो मैं तो उनसे बिल्कुल भी
मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं कुवैत वापस भी नहीं जा पाई। तो फिर हम सारे बहन भाइयों ने ये किया, और एक नॉर्मल चीज़ है कि आप एक कनेक्शन डेवलप करते हो सोशल मीडिया के ही थ्रू, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते थे रोज़ाना रात को, उसकी वजह से हम बहन भाई, चारों बहन भाई हम लोग बैठ के वही गप्पे लगा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर की भी बातें करते थे, न्यूज़ वगैरह की, बट वी ट्राई टू कैच अप अपनी बहन भाइयों वाली बातें और वो सारा। सो दैट वाज सच अ गुड थिंग दैट हैपेंड टू मी, बिकॉज उसकी वजह से मैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने डैड के साथ कनेक्टेड थी। और दूसरा ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या अलोन नहीं फील हुआ। इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में को यूज़ करके आप ऐप्स को यूज़ करके आप गेम्स खेल सकते हो। जैसे मेरी फ्रेंड्स और मैं, हम सब, और मैंने और बहुत सारे लोगों को, साइकोलॉजिस्ट के कैसे सुना कि यू कैन एक्चुअली यूज़ सोशल मीडिया एंड play games. For example, I don't know if any one of you has played Kasauti, but you can, you have to guess a personality and you can do these things, right? तो आप इस तरह की गेम्स खेलते हो, या तो फिर आप और भी वही जैसे बोर्ड गेम्स, अगर आप घर वाले सारे इकट्ठे रहते हैं आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। पाकिस्तानी एक बहुत अच्छी गेम है लूडो, we used to play that, or you can play cards, you can play a lot of other things। अपने शाम का एक आप टाइम रखते हैं अपने बच्चों के साथ। एक बहुत अच्छी और चीज़ है कि आप जो अपने नेचर के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हो। तो आप जब घर के अंदर बहुत ज़्यादा बंद रहते हो या एक ही कमरे में बैठे रहते हो या आपका मुंह सिर्फ आपके मोबाइल की तरफ होता है, तो वो आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है उसको कम करता है, और उसकी वजह से आपका माइंड जो है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना उसका लेवल जो है, इवन आप पढ़ाई भी करो और अगर आप पूरा दिन पढ़ रहे हो तो 2-3 घंटे के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, एंड यू रियली नीड टू ब्रिंग इट बैक। उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यू नीड अपने पूरा एक घर का एक चक्कर लेके आइए, थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर करें ताकि आप फिर से प्रोडक्टिव हो सके। तो यू डोंट हैव टू स्पेंड योर इंटायर डे एक ही जगह पे पढ़ने में। इसी तरीके से जब आप पूरा दिन क्या कर रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप दूसरों को दिखा रहे हो यू आर बिजी, बट यू आर नॉट एक्चुअली बिजी, आप बहुत ज़्यादा फारिग होते हो। तो आप एक ही जगह पे, एक ही काउच पे बैठे हुए हो और आप पूरा दिन जो हो सिर्फ अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हो, और आप एक ही रूम में, एक ही एनवायरनमेंट में बैठे हुए हो, तो आपको इवन एक रूम से दूसरे रूम में भी आप जाते हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। एक नुकसान जो आपको हो सकता है सोशल मीडिया का वो ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। इसीलिए नेचर में जाना, जैसे कि आप प्लांट्स अपने घर में रख लो, दैट आई डू विद माई मदर। हम दोनों, मेरी मदर को क्योंकि इस चीज़ का बहुत सारे लोगों को शौक नहीं होता, आप ना प्लांटिंग करो, आप नेचर में जाके बस बैल्कनी में खड़े हो जाओ और स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स के क्लाउड्स को देखो, ऊपर ब्लू रंग देखो, अभी देखो, फील, ट्राई टू लुक एट थिंग्स, ट्राई टू हेयर द वॉइसेस कि गाड़ियों की आवाज़ आ रही है या तो फिर आपके नेबर्स की क्या आवाज़ें आ रही हैं। ट्राई टू टच अपने प्लांट्स को या कोई भी ऐसी नेचर की चीज़ें, इफ यू हैव पेट्स वो आप उनके साथ टाइम गुजारो। सुनने का ना कहो, नेबर्स को सुनने की टिप मत दो। With due respect, मैं कट करने वाली थी कि इसकी जरूरत नहीं है। ये हम बहुत अच्छे से करते हैं। Not in that way, obviously. हमें इस हैबिट को कम करना है। तो मेरा मतलब कि आपको थोड़ी बहुत of course in that, आपको यानी कि मेरा जैसे कुवैत में घर था तो वो बिल्कुल मेन रोड पे होता है, तो वहाँ पे आप जब खड़े हो तो आपको बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो वो आपको बेसिकली आपका फोकस जो है, जो आपकी थिंकिंग है, माइंड में आप जो होते हो वहाँ से आप बेसिकली अपने आप को डिटैच करते हो। तो आपको मेन काम जो है, जो आप इन सब चीज़ों में कर रहे हो स्ट्रेस से दूर होने में, आप अपने माइंड से निकल रहे हो, आप अपने माइंड को क्वाइट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आप अपनी नेचर को एनालाइज करते हो। फिर यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि आप एक और चीज़ जो आप कर सकते हो कि आप अपना कोई आप रात को सोते हुए अपना जो मोबाइल है वो आप एयरप्लेन मोड के ऊपर डाल दो, और आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दो सुबह कि मैंने ये 3 चीज़ें किए बगैर अपना मोबाइल टच नहीं करना। सो वो एक रिवॉर्ड सिस्टम बन जाता है कि अच्छा मैं ये 3 चीज़ें करूँगी तब मैं मोबाइल को टच करूँगी। सो बेसिकली आप अपनी हैबिट एक डेवलप कर रहे होते हो कि
थोड़ी मैंने फॉर एग्जांपल पहले मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है सुबह उठते साथ, फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी पीना है जो कि मेरी इम्यूनिटी के लिए शायद अच्छा है, या 2 ग्लास पानी पीना है, जो भी आप पी। फिर आपने थोड़ा सा को देखना है, थोड़ा क्लीन करना है, जो भी करना है, अपने घर को साफ करनी, बेडशीट को सही करना है, ये चीजें करने के बाद उठाऊंगी, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने कोई बहन या भाई के साथ आप अकाउंटेबिलिटी एक रख सकते हैं कि आपको कितने आवर्स देने हैं, तो यू कैन हैव अ बडी सोशल मीडिया से दूर लिए। जी, तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप अपना एक बडी जो है डिटॉक्स बडी वो अपने साथ रख सकते हैं जो कि रेडी हो आपको अकाउंटेबल रखने के लिए। फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप जो है वो फोल्डर्स होते हैं, तो वो वाली एप्स जो आपको लगता है कि इतनी यूजफुल नहीं है या आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उस फोल्डर में डाल दो। तो हम लोग बाय नेचर इतने लेजी हैं ना कि दैट इज एक्चुअली अनदर स्टेप कि आप अपने मोबाइल खोलते हो, आपको एक और फोल्डर खोलना पड़ता है, यू डोंट रियली डू दैट क्योंकि वो एक और स्टेप ऐड हो जाता है, तो वो आपको डिस्करेज करता है बेसिकली। नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर सकते हो अपनी, जैसे WhatsApp मैंने नोटिफिकेशन ऑफ की, मुझे Again, the same issue. कुछ साल पहले ये था जो मैं अपना से गई थी कि मुझे Hello. हाँ जी, तो मैं अपनी सारी मैंने अपने सोशल अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि आप अपनी नोटिफिकेशंस जो हैं उनको ऑफ कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप की आपकी होती हैं सारी ऑप्शंस होती हैं आपकी, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर ऑप्शन होती है, बल्कि वो आपको टाइम पूरा बताता है कि आपने कितने आप टाइम सेट करते हैं कि मुझे 4 घंटे आज ये यूज़ करने, तो जब 4 घंटे उसे होते हैं वो आपको नोटिफिकेशन देता है, आप उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। आप फेसबुक की, आप व्हाट्सएप की, तो जितनी आपको नोटिफिकेशन आती है आपको नहीं पता होता कि मुझे रिस्पॉन्स देना है कि नहीं, right? So you can actually help yourself by being aware of your actions consciously, एक conscious effort करना क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। एक और चीज बहुत important है जो कि कहना चाहूंगी, people are hypochondriac, hypochondriac क्या होता है कि आप कुछ सिम्टम्स सुनते हो तो लगता है कि आपको भी उस तरह के सिम्टम्स हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि आपको वो सिम्टम्स होना शुरू हो गए। और हर दूसरे बंदे को मैंने ये कहते हुए सुना कि मुझे हल्की सी खांसी या हल्का जुकाम है तो आई वाज लिटरली पैरानॉइड और मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया बहुत ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो अननेसेसरी होती है, अनवांटेड होती है, यू डोंट रियली वांट टू हियर दैट बट इट्स गिवन टू यू फोर्सफुली, सो यू कैन एक्चुअली डिलीट देम। आप इंस्टाग्राम पे हर रोज का सोशल मीडिया क्लेंस करो, एक अकाउंट जो आपके सामने स्क्रॉल करते हुए आता है, राइट अवे यू फील कि उसने आपको एक इमोशनल ट्रिगर किया है या आप एंशियस होना शुरू हो गया, आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी हुई, आपको माइंड में आप ओवर थिंक कर रहे हो, जस्ट अनफॉलो इट, यू डोंट नीड दैट, you don't have to feed yourself with information that is not आपकी जिंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अब ये आप कर सकते हैं। एक और चीज मैं सबको कहना चाहूंगी कि यू डोंट हैव टू रिप्लाई एवरीबडी एंड एवरीथिंग एट दैट टाइम, यू कैन पीसफुली आस्क पीपल कि राइट नाउ आई एम नॉट अवेलेबल, या अपनी फैमिली को जो इम्पोर्टेंट लोग हैं आप उनको मैसेज कर सकते हो कि मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगा या 2 घंटे बाद या कल या जब भी, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली रिस्पेक्टफुल, आप रिस्पेक्टफुली एक लिमिट डिफाइन कर रहे हो और आप उनसे टाइम ले रहे हो कि अभी मेरा नहीं दिल चाह रहा किसी से बात करने का या मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ एंड आई हैव टू गेट ओवर दैट थॉट, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। इसके अलावा हमने नेचर से कनेक्ट करने की बात कर दी, आप फोल्डर्स वगैरह से क्रिएट करने की बात कर दी। लास्ट जो बेस्ट थिंग है वो है मेडिटेशन। उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप माइंडफुल हो जाते हो। माइंडफुल होने का मतलब है कि आप अपनी environment से अवेयर हो बट यू आर बीइंग माइंडफुल एंड यू आर नॉटिंग योरसेल्फ। माइंडफुल होने का ये मतलब है जो कि अभी हम करेंगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो और आप अपने आप को गाइड करते हो इन ऑर्डर टू यू जस्ट विजुअलाइज। बेसिकली जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप फोकस हो जाते हैं ज़्यादा, और विजुअलाइजेशन से ये होता है कि आप अपने माइंड
माइंड के अंदर से जो भी थॉट्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, अपने माइंड को फोकस करते हैं, अब विजुअलाइज करते हैं वो चीज़ें और वो एनर्जी जो कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में होने के लिए। सो बेसिकली आप उस एनवायरनमेंट से जो कि आपको स्ट्रेस आउट कर रही होती है आप डिस्कनेक्ट करते हैं फॉर सम टाइम। इवन फॉर 5 minutes in a day is a lot for you. And when you breathe properly, that is the deep breathing, आपका जो ऑक्सीजन होता है आपके लंग्स जब प्रॉपरली ब्रीथ करते हैं तो जब आप फोकस करते हो और आप अपनी ब्रीदिंग को स्टॉप करते हो, आप अपने बॉडी को इतनी इजाज़त दे रहे होते हो कि वो ऑक्सीजन रिप्लेनिश करे आपकी बॉडी में। उस ऑक्सीजन के बेहतर होने से आपका स्ट्रेस बेहतर होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन होती है वो बेहतर होती है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप विटामिन सी जैसे रिकमेंडेड है कि आप रोज़ाना लें, लेकिन विटामिन सी इज़ द काइंड ऑफ विटामिन जो कि रोज़ाना आपकी बॉडी में आता है, रोज़ाना आपकी बॉडी से जाता है। सो यू हैव टू टेक दैट एवरी डे, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ विटामिन सीज ले रहे हो तो आपका काम पूरा हो गया। आपको आपकी जो इम्यूनिटी है उसको सबसे ज़्यादा हिट करता है आपका स्ट्रेस, क्योंकि आप फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हो। जब आप फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो रियल इवेंट्स और इमेजिनरी इवेंट्स के अंदर डिफरेंस नहीं जानती। आपका माइंड जो है वो इस चीज़ को बेसिकली विजुअलाइज करता है कि मैं किसी थ्रेट में हूँ और इस थ्रेट से मुझे भागना है, और जब वो थ्रेट से भागना है तो आपका हार्ट तेजी से बीट करता है, या तो फिर आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है और परेशान होना शुरू हो जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो या अपनी जॉब के लिए लेट हो रहे हो तो आपको एकदम से एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। 2 सेकंड, अभी 2 मिनट रहते हैं, इतना टाइम हो गया, मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, समझ नहीं आ रही, इतनी देर हो गई, मैं क्या करूँगा। हालांकि वो लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है, उससे आपको कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं जाना, बट दैट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी वो आपको एंग्जाइटी में लेके जाता है। सो हाउ टू कंट्रोल दैट, यू कैन बी अवेयर, यू कैन आस्क योरसेल्फ, ask yourself multiple questions. Why am I feeling stressed out? Is that a life-threatening question? The answer is no. Then why am I feeling such? मुझे एकदम से मेरी बॉडी में रेज क्यों फील हो रहा है, या तो फिर मेरा हार्ट क्यों रेस कर रहा है? मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि मुझे ये आदत है, सबकॉन्शियस मेरे माइंड को ये आदत है बताने की। उसका रिस्पॉन्स आप देते हो, आप थोड़ी सी डीप ब्रेथ करते हो कि मैं फोकस्ड और अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आ रही हूँ, और ना मैं कल में जा रही हूँ और ना मैं पिछले कल और ना आने वाले कल में जा रही हूँ। तो एक बहुत बेहतरीन बात है जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि मोमेंट की पहचान यही होती है कि वो ना आने वाले कल में रहता है और ना गुजरे हुए कल में रहता है। तो मेडिटेशन भी आपको यही सिखाती है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी इन द मोमेंट विदाउट बीइंग जजमेंटल ऑन योरसेल्फ, कि अपने आप पे आपने डाउट करना शुरू कर देना कि मे बी आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मे बी मैं हमेशा से ही अपनी जॉब में अच्छी नहीं हूँ, या तो फिर मैं अपने बच्चों को ये लेट देती हूँ। कुछ भी आपकी हर बंदा डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो उसके लिए आई थिंक आई वुड गिव यू गाइज गाइडेड मेडिटेशन जिसमें हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। और डीप ब्रीदिंग का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप कैसे डीप ब्रीथ करते हो। बेसिकली हम लोग नॉर्मली अपना जो अभी सांस ले रहे हैं वो हम लोग अपनी चेस्ट से लेते हैं, यहाँ से, हम अपने पेट से नहीं लेते हैं सांस। और आपकी बॉडी जो है, आपके जो इंसेस्टर्स हैं, उनका जो सिस्टम होता था वो ये था कि वो पेट से सांस लेते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे आती रही और आपका स्ट्रेस वगैरह दुनिया में बढ़ता रहा, यू फॉरगॉट हाउ टू ब्रीथ। तो आप जब अपने पेट से सांस लेते हो, बेसिकली आप अपनी बॉडी को इतनी इजाज़त दे रहे हो तो कि आपका ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर एक्सपैंड करे और रिप्लेनिश करे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो अपने पेट से सांस लेना है। आप जब सांस अंदर की तरफ लेते हो तो आप अपने नाक से सांस लेते हो। आपने अपने लिप्स को क्लोज करना है। ये आप सारे ये मेरे साथ करेंगे, ठीक है। आपने अपने लिप्स को क्लोज करना है और आपने अपने नाक से सांस लेना है, ऐसे। आई विल टेल यू हाउ। और एक और चीज़ जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो फिलहाल अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग अपने पेट पे एक हाथ रखें और एक चेस्ट पे हाथ रखें, ठीक है। जब आपने सांस अपनी अंदर की तरफ लेना है ना, तो आपने अपने पेट को फुलाना है। जैसे बलून के अंदर नहीं हवा भरते तो वो फूलता है, इसी तरीके से आपने फील करना है कि आपका जब आपने सांस अंदर लिया है तो आपका पेट बाहर की तरफ आए, जैसे बलून के अंदर हवा भरी है। और फिर उसके पहले बलून में भरेगी हवा पेट की तरफ, और फिर चेस्ट एक्सपैंड होगी। तो चेस्ट आपकी पहले एक्सपैंड नहीं होनी चाहिए, पहले आपका
पेट जो है वो एक्सपैंड हो, ठीक है। फिर आप 4 to 5 सेकेंड जितना भी आपकी बर्दाश्त में, आई वुडेंट आस्क क्योंकि आप 7 के, क्योंकि ये 4, 7, 8 की ब्रेथ है, तो 4 सेकेंड्स के लिए आपने सांस अंदर खींचना है, ठीक है। और आप लोगों ने अपने आप को बहुत सख्ती से ऐसे करके नहीं कर लेना, आप लोगों ने रिलैक्स करके सांस अंदर लेके जाना है, ठीक है। फिर आपने थोड़ी देर के लिए अपने सांस को होल्ड करना है, वो आपको बेसिकली फोकस्ड होने में मदद करता है, क्योंकि आपकी सारी अटेंशन इधर उधर से खत्म हो जाती है और आप सांस के ऊपर फोकस कर रहे होते हो। फिर वो जब आपने और आपने अपने माइंड में काउंट करने 1 2 3 4 5 सेकेंड हो के उसके बाद आपने अपने मुंह से व्हीजिंग साउंड निकालना है, ऐसे आपने पूरे तरीके से अपना सांस बाहर निकालना है। और आपका जो पेट है वो जैसे बलून डिफ्लेट होता है, आपका पेट भी डिफ्लेट हो पहले, और फिर आपका पूरी बॉडी नीचे की तरफ ऐसे आ जाए, ठीक है। सो I will guide you guys and you are going to meditate with me and I am so sure कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो और आप लोगों को लगे कि मेडिटेशन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेडिटेशन इज़ वेरी हार्ड। बोलने में लगता है कि बड़ी आसान है, लेकिन ये नहीं है आसान, क्योंकि 1 मिनट भी आपको अपने साथ बैठना मुश्किल लगता है जब आपको नहीं पता चलता कि आप अपनी थॉट से कैसे बाहर निकलो, राइट। पहले थैंक यू करना चाहूँगी तमाम गेस्ट का जो सब आज आए और हमारे स्पीकर्स का। आप सब के लिए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं स्पीकर्स, उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन है जो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी। प्लीज सब अपने लिए क्लैपिंग कर लें खुद से, हम भी कर रहे हैं घर में। अब ये नया दौर है, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे हमारा सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए नात, किरत एंड स्पीच कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जो ओपन होगा सबके लिए। सोशल मीडिया पे हम उसको पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। उसमें हम लोग सब अपने बच्चों को, एजेस हैं 18 एंड अबव, ओके, तो आप लोग के बच्चे और आप लोग सब मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें भी गिफ्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। इंशाल्लाह हम लोग एक फैमिली है और फैमिली की तरह रहेंगे। हम ये बॉन्डिंग चाहते हैं आप सबके साथ, तो आप सब इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और आज का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी वूप मीडिया का, जिन्होंने हमें हेल्प किया। ये सारा जो कंट्रोल है उनके हाथ में, क्योंकि मैं साथ में कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी और सारा सब कुछ होस्ट भी करना था, तो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। तो अगेन वंस अगेन हम सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया वूप मीडिया, आप सबका हमें हेल्प करने का। आप दोनों का, शहजाद भाई और तारिक भाई दोनों इस वक्त साथ हैं। बहुत शुक्रिया। प्रिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं ये कहना चाह रही थी, मैं समअप करने के लिए, कि जिस तरह माशाल्लाह डॉक्टर मरियम सदफ और हमारी मिस जावेद थी, सफ़ा जावेद, और अभी रिदा माशाल्लाह, आई थिंक वेरी वेल कवर्ड द एंटायर what I should say the math of mental problems. It was all covered by all your 4 speakers and I really want to thank, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा जो भी हम प्रोग्राम रखें वो थोड़ा उर्दू में ज्यादा रखें, क्या ख्याल है फौजी? क्योंकि हम लोग खुद सब रवानी में बहुत इंग्लिश बोल जाते हैं, क्या ख्याल है हमारे सारे स्पीकर्स का? नहीं, आप सही बात है, फोकस ही उर्दू पे करती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये इनको सब तक पहुंचे। सब तक पहुंचाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं इंग्लिश समझ आती, तो ये ज्यादा पे होना चाहिए। देखा नहीं था वो बेचारी ओल्ड वुमेन बैठी थी, अब उस बेचारी को क्या पता चले वो क्या बोल रहा है कोई। तो ऐसे ही होना, जैसे वो यास्मीन मुजफ्फर कहती थी कि हमारा हर प्रोग्राम ज्यादातर उर्दू में होना चाहिए, यानी 90% उर्दू होनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, आज नए बच्चे थे हमारे साथ, पहला एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट टाइम जी। थैंक यू सो मच सब पार्टिसिपेंट्स का, सबके आने का, अपना कीमती टाइम देने का, और पीओसी टीम का, वुमेन्स विंग का, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सब काम कर रहे हैं। मनाहिल आपका थैंक यू, बहुत अच्छा होस्ट किया आपने। सदफ आपका जबरदस्त। मरियम माशाल्लाह वेल डन। मरियम की जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। जी प्लीज, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने के लिए काइंडली। अंबर, आंसर, शाहरुख, आप सबका शुक्रिया जो मुझे अभी स्क्रीन पे लोग नजर आ रहे हैं, आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोगों से फीडबैक चाहिए हमें। जी प्लीज, आप सब लोग अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिस प्रेसिडेंट हैं वो काफी इंथुजियास्टिक हैं और वही पॉजिटिविटी उनसे हमें मिलती है। तो मेडिटेशन आई थिंक स्टेप 1 आपसे स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद फिर एक्सटेंशन जो है वो हमारे स्पीकर्स हमें बता रहे हैं उसको।
और मजीद हम इसको एग्जैजरेट करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे एंड होपफुली हम लोग इसको आगे भी करेंगे। आप में से कोई और कुछ भी बात करना चाहता है? वो लोग जो अभी तक म्यूट हैं, अगर वो अनम्यूट करके कुछ बात करना चाह रहे हैं, हमारे साथ स्पीकर्स कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं फरा, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, अभी जो सफा, सदफ, मरियम, रिदा, I mean all the points were really useful for all of us. So thank you very much. और इंशाल्लाह hoping to see you all again in another session. Thank you so much Farah. I'm very glad. जी थैंक यू सो मच फौजिया और आपकी टीम, माशाल्लाह मैंने बहुत एंजॉय किया है, सब बहुत अच्छे थे। प्लीज कीप ऑन गोइंग दिस, ये सारे सेशंस, रिदा का स्पेशली, मिस रिदा का दोबारा आप स्केड्यूल्ड सेशंस करवाइए हमारे साथ, तो उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। और मिस सफा और मिस सदफ ऑल आर वेरी गुड माशाल्लाह। थैंक यू अंबर, थैंक यू। जी मिस मरियम भी थी हमारे साथ, उन्होंने भी काफी गाइड किया हमें, उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो ये सब चीजें हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है। सो थैंक यू वेरी मच मिस मरियम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बस मेरे यही टिप्स होंगे कि जो मैंने आपसे मेन टिप्स शेयर किए कि यू हैव टू वेयर अ मास्क, यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर हैंड्स एंड इंशाल्लाह दिस शैल टू पास। आप सबका वंस अगेन शुक्रिया, बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। आई थिंक सबने बहुत टाइम दे दिया और अल्लाह हाफिज कह देना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज everybody. Thank you जी, see you till next time. Good night and bye. Allah Hafiz. इंशाल्लाह।